آج کے لیکچر کے ساتھ میں ایک ویڈیو اٹیچ کر رہی ہوں. آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اور ان میں سے اہم پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چیپٹر 2 قیام پاکستان گریڈ 8. آج ہم پڑھیں گے کرپس مشن 1942. کرپس مشن 1942. کرپس مشن 1942 1942. آئیے ذرا ان کی جو ہیڈنگز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. پس منظر، سیاسی بحران، سر اسٹیفرڈ کرپس کی ہندوستان آمد، تجاویز، انڈین نیشنل کانگریس کا رد عمل، مسلم لیگ کا رد عمل اور مثبت پیش رفت. گریڈ 8. سب سے پہلے ہم پس منظر دیکھتے ہیں. دوسری جنگ عظیم کا آغاز 1939 میں ہو چکا تھا. انگریز وائسرائے نے ہندوستانیوں سے مشورہ کیے بغیر اس جنگ میں شمولیت کا اعلان کیا تھا. ہندوستان میں اس وقت جو انگریز وائسرائے تھا اس نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہندوستان کے لوگ بھی اس جنگ میں شامل ہیں. اس کو بنیاد بنا کر کانگریس نے صوبائی حکومتوں سے استعفے دے دیے تھے. اب 1940 اور 1940 تا 41 کے لگ بھگ جاپان بھی اتحادی اقوام کے خلاف اس جنگ میں کود پڑا، کیونکہ صرف یہ ایک ملک کی جنگ نہیں تھی بلکہ مختلف ممالک آپس میں اتحاد بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے. کانگریس اور گاندھی پہلے ہی لوگوں کو برطانیہ کے خلاف اور کانگریسی حکومت کے قیام کی کوششیں کر رہے تھے. نیکسٹ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں سیاسی بحران. ایسی سنگین صورتحال میں حکومت برطانیہ نے ہندوستان کے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے سر اسٹیفرڈ کرپس کی سرکردگی میں 3 افراد کا ایک وفد نمائندہ ہندوستان بھیجنے کا اعلان کیا. کرپس نے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے کر ہندوستان کے مسئلے کے حل کے بارے میں کچھ تجاویز پیش کی. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری تجاویز. آئیے دیکھتے ہیں کہ کرپس مشن نے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے کر کیا تجاویز پیش کی. نمبر 1، جنگ کے بعد ہندوستان کو آزادی دی جائے گی. اب کون سی جنگ؟ جنگ عظیم دوم جب ختم ہوگی تو ہندوستان کو آزادی دی جائے گی. نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں نیا آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. بچے وفاقی جو آئین ہوتا ہے اس میں ایک وفاق بنا دیا جاتا ہے اور باقی صوبے ہوتے ہیں، جیسے ہمارا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے اور اس کے ساتھ 4 صوبے ہیں. نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں جنگ کے بعد ایک آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے گی جس کے ارکان کو صوبائی اسمبلیوں کے ایوان زیریں کے ممبران مناسب نمائندگی کے اصول پر منتخب کریں گے. اب جب جنگ عظیم دوم ختم ہوگی تو کیا ہوگا کہ ایک آئین ساز اسمبلی بنائی جائے گی. نمبر 4 پہ ہم دیکھتے ہیں اسمبلی کا تیار کردہ آئین. کون سی اسمبلی کا تیار کردہ آئین؟ جو آئین ساز اسمبلی ایک آئین تیار کرے گی. کس کے لیے؟ ہندوستان کے لیے. حکومت برطانیہ کو قابل قبول ہوگا. جو آئین ساز اسمبلی ہندوستان کا آئین تیار کرے گی کیا ہوگا کہ حکومت برطانیہ اسے قبول کر لے گی. 5 پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں آئین ساز اسمبلی اور تاج برطانیہ کے درمیان تمام مسائل اور امور طے کرنے کے لیے معاہدہ ہوگا. امر کی جمع ہے. نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں اگر وفاق میں شامل کوئی صوبہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو وہ علیحدہ ہو سکے گا. وفاق میں میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا ہے کہ وفاق جس طرح ہمارا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے اور 4 صوبے ہیں، اسی طرح کہ آئین بننا تھا ہندوستان کے لیے کہ یہ ایک وفاق ہوگا اور باقی صوبے ہوں گے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے 6 پوائنٹ میں کہ اگر کوئی صوبہ وفاق سے علیحدہ ہونا چاہے تو علیحدہ ہو سکے گا. اور نمبر 7 پہ ہم دیکھتے ہیں جنگ کے دوران کون سی جنگ؟ جنگ عظیم دوم کے دوران دفاع کی ساری ذمہ داری برطانوی حکومت کے ہاتھوں میں ہوگی. نیکسٹ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کا رد عمل.
क्रिप्स की इन तजावीज़ को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मुस्तरद कर दिया, मीन मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने इन तजावीज़ को इस बुनियाद पर मुस्तरद किया, मीन मानने से इनकार कर दिया कि इसमें हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फौरी इक़दाम नहीं थे, कि फौरी तौर पर हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं किया जा रहा था, बल्कि जंग के बाद का वक्त दिया गया था। दूसरी बात ये थी कि इन तजावीज़ से कांग्रेस को पाकिस्तान की बू आती थी, क्योंकि इन तजावीज़ में से एक ये थी कि सूबे अगर चाहें तो वफाक से अलहदा हो सकते हैं। पाकिस्तान भी उन्हें लग रहा था कि आने वाले सालों में पाकिस्तान बन जाएगा, कि वफाक से जो सूबा अलग होना चाहे हो सकता है, तो इन तजावीज़ को इसलिए कांग्रेस ने रद्द कर दिया। आइए अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम, मुस्लिम लीग का रद्द अमल। मुस्लिम लीग ने इन तजावीज़ को इसलिए मुस्तरद किया, इसलिए इन मानने से इनकार कर दिया कि इसमें मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा वाज़े अंदाज में तस्लीम नहीं किया गया था, वाज़े अल्फाज में नहीं माना गया था कि हाँ सूबे अलग होकर पाकिस्तान की शक्ल या एक अलग मुस्लिम मुमलिकत की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग को ये भी एतराज़ था कि गुफ्तो शनीद का मतलब होता है बातचीत में, इनको एतमाद में नहीं लिया गया था। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि मुस्बत पेशरफ्त। क्रिप्स मिशन तो अपने मकसद में नाकाम हो गया, मगर मुसलमानों के मफादात के लिहाज से इसमें ये एक मुस्बत पेशरफ्त हुई कि बरतानवी लीडरों ने सूबों को हिंदुस्तानी वफाक से अलहदा होने का हक़ देकर हिंदुस्तान की तकसीम के असूल को पहली बार तस्लीम कर लिया, मान लिया। इस तरह ये इम्कान पैदा हो गया कि मुस्तकबिल में मगरबी और मशरकी इलाकों पर मुश्तमिल मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का क़याम अमल में आ जाएगा। क्रेडिट अब यहाँ पे दोनों ने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन की तजावीज़ को रद्द कर दिया, लेकिन इसमें एक मुस्बत पेशरफ्त ये हुई थी, एक अच्छी बात ये थी कि हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान की तकसीम को मान लिया था कि जो सूबा वफाक से अलहदा होना चाहे अलहदा हो सकता है। तो मुसलमानों को ये उम्मीद हो गई थी कि आइंदा आने वाले दिनों में मशरकी और मगरबी इलाकों पर मुश्तमिल अलग मुस्लिम मुल्क का क़याम होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्स मिशन एंड क्रिप्स मिशंस प्रपोजल्स। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है हिस्ट्री के अंदर। अगर इस टॉपिक के बैकग्राउंड की बात करें तो इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि 1939 के अंदर जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई थी, और उस टाइम पे जो 1937 के अंदर जो कांग्रेस ने वजारतें ली थी, उन्होंने प्रेशराइज़ करने के लिए यूके की गवर्नमेंट को वो 1939 के अंदर अपनी वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया था और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक स्टार्ट कर दी थी। यह हुकूमत के सामने आ चुके थे कांग्रेस वाले। उसके बाद देखिए हम तो 1940 के अंदर जो है वो करारदाद लाहौर मंजूर होती है। उसके बाद अगले 2 साल के अंदर जो है वो उसी को मुसलमान जो है करारदाद लाहौर को ही बिल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो अपनी मुसलसल अभी जारी है 1939 के बाद। और ऐसे में जापानी जो हैं वो सबसे बड़ा ख़तरा थे बरतानवी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि बरतानवी गवर्नमेंट जो थी वो हिंदुस्तान के अंदर थी, तो जापान जो था वो बर्मा से यहाँ पहुँच रहा था और बहुत ही जल्द उसे यहाँ पहुँचना था, क्योंकि इससे पीछे जितने मुल्क भी थे, वियतनाम था, थाईलैंड था, और ये जितने भी दूसरे मुल्क थे इन पर कब्जा कर चुका था। और बहुत ही तेज़ी से जो जापान था वो आगे बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस थी। तो ऐसे में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, हिंदुस्तानियों की सपोर्ट की, ताकि वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सके अपनी बैक को। ऐसा ना हो कि जापानी उन्हें यहाँ पर शिकस्त देकर चले जाएं। तो ऐसे में एक वफ्द जो है वो सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो है उनकी ज़ेर निगरानी भेजा गया। 3 रुकनी ये वफ्द था जिसको भेजा गया बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर चर्चिल की तरफ से कि आप जाएँ और जाके हिंदुस्तानियों से मुज़ाकरात करें और इन्हें इस जंग में हमारा साथ देने का कहें। तो ऐसे में वो मिशन जो है वो यहाँ पर पहुँचता है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान में पहुँचकर 23 मार्च 1942 को हिंदुस्तान पहुँचता। तो यहाँ पे आके वो प्रपोजल्स लेके आता है मुस्लिम लीग के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। उनमें अगर प्रपोजल में अगर हम देखें तो सबसे पहला ये था कि स्टेटस ऑफ डोमिनियन, कि ये कहा गया कि जंग के बाद जो है हिंदुस्तान को डोमिनियन का स्टेटस दिया जाएगा, अंदरूनी भी और बैरूनी भी मामला जितने भी हैं वो सारे हिंदुस्तानियों के मातहत कर दिए जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की तो वो है जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि भाई जो लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाला इदारा है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि आइन बनाएगा हिंदुस्तान का हिंदुस्तानियों की मर्ज़ी से। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो अगर हम देखें तो वो है मजलिस कानून साज जो है उसमें शाही रियासतों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉयल स्टेटस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे। अगर चौथा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा
क्रिटिकल पॉइंट है उसमें ये था कि आइन के नफाज के कुछ जो है वो शराइत रखी गई थी कि जो आइन होगा वो किन शर्तों पर होगा कि उसमें जो है ना कोई भी सूबा जो है वो उसकी मौजूदा हालत को बरकरार रखा जाएगा, और इसके बाद अगर कोई सूबा जो है आइन साजी के अमल में शामिल नहीं होना चाहता तो वो उसकी अपनी मर्जी, अगर कोई बाद में भी शामिल होना चाहता है तो शामिल हो सकता है। और इसी के अंदर ये कहा गया आइन साजी के नफाज के अंदर कि जो आइन है वो वफाक में शामिल, जो सूबे हैं वो नई वफाक में शामिल नहीं होंगे, इन्हें वफाक हिंदुस्तान की तरह डोमिनियन का मकाम देगा, यानी जो शामिल नहीं होंगे वफाक के अंदर उन्हें डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा। इसी के अंदर एक्सप्लेन किया गया कि जंग जो थी उसके खात्मे पे असम्बलियों के इंतखाबात भी करवाए जाएंगे। और इसी के अंदर अगला पॉइंट ये है कि दस्तूर साज असम्बली के जो इंतखाबात थे वो सूबाई असम्बलियों के ऐवान ज़ेरी जो हैं, जो लोअर हाउस है उसके मेम्बरान के थ्रू होंगे, बल्कि डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होंगे। और असम्बलियों की सीटों का जो 10वां हिस्सा है वो दस्तूर साज असम्बली में मौजूद होगा। तो ये आइन के नफाज के अंदर कुछ थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ें डाली गई। इसके बाद जी इंटरिम गवर्नमेंट की बात की गई कि जब तक नई दस्तूर साज असम्बली जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगी उस वक्त तक जो है बरतानवी हुकूमत के सुपुर्द ही ये रहेगा। इसके बाद जो है वो डिफेंस अफेयर्स की बात की गई कि वो डिफेंस अफेयर्स जितने भी होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के पास ही रहेंगे। और एट दी एंड ये कहा गया कि जो शराइत हैं, जो ये सारी की सारी जो कंडीशंस डाली गई हैं, या तो आप इन्हें कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर दें, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस को कहा गया। तो इसका जो नतीजा आया, अगर हम इसका रिस्पांस देखें तो उसमें सबसे पहले हम जो रिएक्शन देखते हैं वो अगर कांग्रेस की तरफ से देखें तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो थी, जो उसका इजलास हुआ 2 अप्रैल 1942 को, तो उसमें उन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया। उसकी 2 वजूहात थी। सबसे पहली वजह तो ये थी कि कांग्रेस किसी भी प्रपोजल को एट दिस टाइम वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो मज़ीद जो है प्रेशर में आए और जापानी यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वो जापानियों की मदद से एक फ़ौज भी तैयार कर रहे थे कांग्रेस वाले, ताकि वो यहाँ से किसी तरह से हेल्प मिल सके इनको और कांग्रेस को, और यूके की जो गवर्नमेंट है उसे यहाँ से ख़त्म किया जा सके। इसलिए वो इनकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे रिजेक्ट किया। दूसरा उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए कि हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ख्याल में यूँ तो पाकिस्तान जो है ये तो उसकी बनाने की तजवीज़ है कि सूबों को अगर आप कहते हैं आज़ाद कर दिया जाए, यूँ तो मुसलमान पहले से ही चाहते हैं कि सूबों को आज़ाद कर दिया जाए, तो ये तो पाकिस्तान बनने की बू आ रही है इसके अंदर से, उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सूबों को वफाक से अलग होने का इख्तियार दिया ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि इससे तो मुसलमान बिल्कुल ही मुसलमान सूबे जो हैं वो अलग हो जाएंगे। और एट द एंड उन्होंने ये बात कही कि जो आज़ादी, जब तक कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलेगी उस वक्त तक बरतानी कोशिशों में किसी भी किस्म की मददगार नहीं होगी। अगर आप हमें आज़ाद करते हैं तो फिर हम आप उनकी बातों पे सोच सकते हैं। ये 3 से 4 जो हैं ये रिएक्शंस आए कांग्रेस या हिंदुओं की तरफ से, तो इस तरह उन्होंने कम्प्लीटली इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ अगर मुस्लिम लीग का रिएक्शन हम देखें तो मुस्लिम लीग ने भी जो है इसको रद्द कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ये समझती थी कि इसमें जो पाकिस्तान का बनने का जो क़याम पाकिस्तान है वो बड़ा गैर मुबहम है, हमें नज़र नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल के अंदर जो है वो पाकिस्तान की रियासत बनेगी, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग ने भी इसे मुस्तरद कर दिया। इसके साथ ही मुस्लिम लीग ने ये कहा कि भाई दस्तूर साज असम्बली जो है उसमें हिंदुस्तान की एक यूनियन बनाना, ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान, अगर इस तरह से अक्सरियत जो है वो ज़्यादा हिंदुओं की है तो हिंदू ही जो कि असम्बली में जाएंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो दस्तूर बनाएंगे, तो उनको तो बिल्कुल खुली छुट्टी मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी, मुसलमानों के साथ जैसा भी सलूक करें, जैसे भी कवानीन बनाएं। तो इसलिए भी जो है कायद अज़म ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया या मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरह ये जो क्रिप्स मिशन था ये नाकाम हो गया। लेकिन क्रिप्स मिशन की नाकामी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छोड़ कर गई हिंदुस्तान के अंदर, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पहली दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये तस्लीम किया कि भाई मुसलमान जो हैं वो उनका जुदागाना तशख़्ख़ुस है, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सूबे जुदा होना चाहते हैं वो जुदा भी हो सकते हैं, उन्हें डोमिनियन का स्टेटस दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्रिप्स मिशन है ये नाकाम हो गया। ग्रेड 8 आज हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन। तो आपने बाकायदा हेडिंग्स के साथ होमवर्क करना है और याद करके मुझे इनबॉक्स में सुनाना भी है। इंशाल्लाह आपका काम चेक किया जाएगा और आपको रिस्पांस भी दिया जाएगा।